کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم دیوی مینوں وقت نزادے شوق اندر یاد کراں میں تینوں اللہ اللہ کر دیاں جیوان وچ اللہ مر جاواں جاں جارو جسے وچ ہووے پکاواں باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت وال نظر اٹھاواں اٹھدیاں بیندیاں ٹردیاں پھردیاں تیرا اسم کماواں قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دسے
غیر نہ دسیں قائم اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائیں مرشد ماں پیو راضی رہیں فضل کرے رب نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين سامعین اختشام ہم سبھی آج ان بزرگوں کے نماز جنازہ میں شریک ہیں یہی ہمارے لیے سب سے بڑی واعظ ہے میں بھائی محمد ندیل صاحب کے والد محترم کہ اس دکھ بری ان لمحات میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں سامعین اختشام یہ بزرگ ماہ صیام رمضان میں اپنے سفر کو جا رہے ہیں یہ ماہ مقدسہ کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت بڑی بابرکت ہے ان برکت بری ساعتوں میں یہ بزرگ ہم سے جدا ہوئے سامعین اختشام ہر گھڑی میں میرے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا اس ہر گھڑی میں رب ان لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے یہ برکتیں یہ رحمتیں اور ان لمحات میں رب خزان رمضان فرماتا ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر دن اور رات میں 1,00,000 لوگوں کو رب دوزخ سے آزاد فرماتا ہے سبحان اللہ دن رات کے اندر 2 اور جتنی یہ دنوں میں رب دوزخ سے آزاد فرماتا ہے شب جمعرات اور جمعہ کے دن رب اس سے دگنا جتنا ان دنوں میں رب دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ان 2 دنوں میں رب ان کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے پھر لیلۃ القدر میں سارے رمضان کے برابر جتنے لوگوں کو رب دوزخ سے آزاد کرتا ہے اس ایک دن میں رب دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے سامعین اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی برکت کی ہی بنا پر رب اتنے لوگوں کو جن لوگوں پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے دوزخ میں چلے جاتے ہیں رب ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے صرف ماہ صیام رمضان کی برکت کی وجہ ان جو سعادت بری لمحات ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر یہ لمحات رب نے ہمیں عطا کیے ہیں تو ان پر ہم عمل پیرا ہو کر ان برکتوں کو ان رحمتوں کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے
रब हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हाफिज़ सुल्तान महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। शुरकाए नमाज जनाजा, जैसा कि आपने समाअत फरमाया, माह सियाम की बाबरकत घड़ियाँ और ये जो लम्हात हैं, इन लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जो हम पे मेहरबानी फरमाता है, जो इनामात इकरामात हम पे नाजिल होते हैं, उनका अहाता करना इंसान के बस की बात नहीं। इस माह मुक़द्दसा में खालिक़े कायनात अपने बंदों पे ख़ास फजल ये फरमाता है कि पूरा साल जो है उसमें एक महीना जो है ये मुसलमानों के लिए प्रैक्टिस का महीना है। इसे यूँ समझ लीजिए जैसा कि एक फौजी जो है वो एक मखसूस पीरियड के लिए रंगरूटी करता है। जब वो फौज के सारे असूल समझ लेता है, उसके बाद उसे एक कामयाब सिपा सलार या सिपाही कहा जाता है। तो यूं ही माह सियाम का एक जो ये महीना है, ये मुसलमानों के लिए प्रैक्टिस का महीना है। और इस मुक़द्दस महीने में हमें पूरे साल की प्रैक्टिस करनी होती है। और एक साल के बाद जब ये महीना गुजर जाता है, तो इसके बाद जो लोग इस माह मुक़द्दसा में नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, खैर का जज्बा अपने दिल के अंदर रखते हैं, अगर इस माह के बाद ये सारी चीज़ें उनसे निकल जाएं तो समझ लीजिए कि उन्होंने ये प्रैक्टिस सही नहीं की। और फौजी का ये होता है कि अगर वो रंगरूटी के बाद घर चला जाए तो उसे कोई फौजी नहीं कहता। तो ज़रा सोचिए कि अगर रब्बे कायनात ने 11 महीनों में से एक महीना मुसलमानों की प्रैक्टिस के लिए रखा, तो इसके बाद अगर हमारे अमाल जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो हम भी सही मुसलमान नहीं। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। और खुशकिस्मत हैं ये लोग जिनको खालिक़े कायनात जाना तो हर किसी ने है, लेकिन जाना इन लोगों का है जो अल्लाह के फजल से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है कि माह सियाम जब दाखिल होता है तो खालिक़े कायनात जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है। और फिर ये जुम्मा का दिन, इन बुज़ुर्गों की एक बड़ी ये सिफ़त थी कि जुम्मे के दिन ये मस्जिद में पहले नमाजियों में से होते थे जो पहली सफ़ में आकर नमाज का इंतज़ार करते और बड़ी तवज्जो से जो है वो खतीब की गुफ्तगू सुनते। ये इस दौर में ये लोग बहुत कम हैं। हमारा ये हाल है कि हम 2 मिनट रहते हैं तो मस्जिद में भागते हैं, ज़हमत ही नहीं करते कि वाज़ सुना जाए, और जब आखिरी दुआ से पहले ही हम मस्जिद को खाली कर देते हैं। और मस्जिद के अंदर जिसका ज़्यादा दिल रागा रहता है, ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। जिस बंदे का मस्जिद में ज़्यादा दिल रागा रहता है, समझे कि उसका ईमान पुख्ता है। और फिर बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि जितनी देर अल्लाह की रज़ा की खातर मस्जिद में वक्त दिया जाता है, उस वक्त का हिसाब नहीं होगा। आज हम अपने अंदर झांकें कि हम मस्जिदों के अंदर कितना वक्त देते हैं। यही वजह होती है कि जब मुसलमान रमज़ान के अंदर एक
मखसूस वक्त के लिए जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो उस तरह की नहीं होती और फिर पूरा साल हम भूल जाते हैं। मुसलमान रमज़ान के अंदर मुसलमान और गैर रमज़ान में हमारे अमाल जो हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि हम मुसलमान हैं या नहीं। हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह खालिक़ कायनात हमारे नेक बुज़ुर्गों को इस दुनिया से लेकर जाता है, हमारी मौत भी ऐसी हो। हमें ऐसी ही मौत मांगनी चाहिए। जाना तो है, दुआ के खालिक़ कायनात हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब को ईमान की मौत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। रहीम हज़रात मोहतरम, ये माह सियाम इंसानों की तरबियत का, मुसलमानों की तरबियत का महीना है और जो लोग इस तरबियत को अच्छे अंदाज में करते हैं वही कामयाब होते हैं और वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का मकसद रखा है वही उस मकसद को हासिल करते हैं। उस मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो पूरे लवाज़मात के साथ, आदाब के साथ ये इबादत सर अंजाम देते हैं। रोज़े के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये तुम पर इसलिए फर्ज किएंगे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सिर्फ रमज़ान के लिए मुत्तकी नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर तहारत आ जाए, ये मकसद है रोज़े का कि वो तुम्हारा अंदर का जो इंसान है वो उजला हो जाए, वो रोशन हो जाए, तुम्हारी रूह जो है वो पाकीज़ा हो जाए, ये मकसद है। जितनी भी इस्लाम की इबादत हैं उनके पीछे कई जो है वो हिकमतें होती हैं और वो सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये होती है कि इंसान की रूह उजली हो जाए। कि जब इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रूह डाली थी तो बड़ी पाक और शफाफ थी और इसी रूह को जब हमने अपने अमाल की वजह से गंदा किया तो ये रूह वो उसमें सफाई नहीं रही, पाकीज़गी नहीं रही, तो फिर वो हमारी रूह का ये हाल हुआ। और अगर हमारी रूह हम इसी यानी सिफात के साथ हमें मौत आ गई तो उसका बड़ा बुरा अंजाम है। वो लोग जो इस नापाक रूह को, इस परागंदा रूह को लेकर अल्लाह की बारगाह में गए, उनके लिए बड़ी 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 भयानक उनके लिए अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्होंने रूहों के बिगड़ने का जो सबब लिखा है और रूहों के बिगड़ने के बारे में लिखा है। और दूसरी शख्सियत मुल्ला सदरा जो अहले तशय्युं के बहुत चोटी के उलमा हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि बंदा जब दुनिया में रहकर ऐसे काम करता है, इस रूह को परागंदा करता है, इस रूह को गुनाहों से आलूदा करता है, तो उसका अंजाम क्या होता है। अब इंसान के अंदर तरह तरह की सिफात हैं, तरह तरह के उसके अंदर वो जज्बात होते हैं, जो जज्बा इंसान पर गालिब रहा। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिस इंसान पर जिंदगी में शैतानी नौसरबाजी इस तरह के जज्बात रहे, और ये जज्बात और ये इस तरह की सोच किस जानवर में होती है, उन्होंने लिखा कि ऐसा शारक आदमी, ऐसा शैतान आदमी जब उसकी रूह इस जिस्म से निकलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लूमड़ बना देंगे। वही रूह जो बंदे के अंदर जब डाली गई थी तो कितनी पाकीज़ा थी, उस बंदे ने अपनी रूह को परागंदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके रद्द अमल के तौर पर उस इंसान की रूह को बिगाड़ कर लूमड़ बना दिया। ये वो लोग जो सियासी चालबाजियां करते हैं और ये लोग जो शरीफ तबा लोगों को धोखा देकर वो समझते हैं कि हम तो बड़े कामयाब हैं इस माशरे के, हम ऐसी मुनाफकत करते हैं और ऐसा हमारा रवैया है कि हम लोगों को धोखा दे देते हैं। ये लोगों को धोखा नहीं है,
ये अपनी जात का धोखा है और अपनी जात को नुकसान पहुंचाना है। जो ऐसे माशरे के अंदर नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं, उनकी रूह को उस लूमड़ में बदल दिया जाएगा। उधर उनकी रूह निकलेगी, उधर वो लूमड़ बन जाएगी। और उन्होंने लिखा कि वो लोग जिन पर गुस्से का गलबा आता है और जिनके अंदर गुस्सा और इस तरह की जो सिफात हैं वो होती हैं, उनको वो दरिंदा, वो शेर और इस तरह के जो जानवर हैं वो बना दिया जाएगा। और वो इंसान जिसके अंदर शहवत का गलबा है और जिसके अंदर इस तरह की जज्बात का गलबा है, उनके लिए वो खंजीर इस तरह उनकी रूह को बना दिया जाएगा। ये है वो नेगेटिव पॉइंट, ये है वो सिफात जो हमारी रूह को बिगाड़ देती हैं, जो हमारी रूह को प्रगंदा कर देती हैं। अल्लाह ने तो हमें ऐसा निज़ाम दिया है कि अगर हम अपनी रूह को पाकीज़ा रखना चाहें तो ये रमज़ान इसी रूह को पाकीज़ा करने के लिए आया है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है। और जब बंदा इस तरह की जिंदगी गुजारता है, उनके लिए क्या अजर और सवाब है और उनकी क्या शान है। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी रूह को जब फरिश्तों ने बाहर निकाला और एक रेशमी कपड़े में उसको ढांप कर वो फरिश्ते जो हैं वो उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। बड़े एजाज के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ वो उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। और जब वो रूह पहले आसमान पर पहुंचती है, जितनी मखलूक है उस आसमान पर, वो हैरान है कि आज क्या माजरा है। आज ये पहले आसमान का जो इहाता है, आज पहले आसमान की जो फजा है, वो तो बड़ी मुअत्तर हो गई है, खुशबुएं आ रही हैं। वो पूछते हैं कि ये खुशबू का सबब क्या है। उनको बताया गया कि एक अल्लाह का प्यारा बंदा, उसकी रूह को लाया जा रहा है और वो रूह इस पहले आसमान से गुजर रही है। उस रूह की जो खुशबू है उसकी वजह से ये सारी फजा मुअत्तर है। इसी तरह जूं जूं उसको ले जाया जाएगा, हर आसमान पर जब वो रूह गुजरेगी तो वो उस पूरी फजा को मुअत्तर कर देगी, उसका माहौल मुअत्तर हो जाएगा। हत्ता के जब उस रूह हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको ये एजाज बख्शा गया कि उनकी रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श अजीम के नीचे जगह अता फरमाई। और जब उस रूह को अर्श अजीम के नीचे रखा गया, वो जो अर्श अजीम है वो इस तरह झूम रहा है, वो इस तरह खुश हो रहा है कि आज कमाल की रूह मेरे अंदर आई है, आज कमाल की रूह मेरे नीचे आई है। तो हज़रात मोहतरम, मैदान खुले हैं। हम अपनी रूह को पाकीज़ा बनाना चाहते हैं तब भी मैदान खुला है, और हम अगर अपनी रूह को प्रागंदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मौके मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक की बरकत समेटने की तौफीक इनायत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मारे जाने वाले बुजुर्गों की मगफरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद नदील का ताल्लुक आस्ताना लिया गुलहार शरीफ से। जितने भी हमारे गुलहार शरीफ से संगी या यहाँ वादी बना के दूर दराज से अहबाब आए हैं, अल्लाह सब का ना कबूल फरमाए। ये बच्चे मेरे शागिर्द हैं, मैंने अपनी मौजूदगी में इनके बाप को गुस्ल दिया। यकीन जानिए सादगी और आजिज़गी। आज ये दूसरा जनाजा, पहले माँ का जनाजा चंद माँ, आज बेटे का जनाजा। खुश नसीब में आप लोग जिनको रब ने तौफीक दी है, अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। दूसरा अशरा है तो ये आप सभी जानते हैं, पहला रहमत वाला, अब ये मग़फ़िरत वाला रब्बुल जलाल ने अता किया, और शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। दुआ करें कि अल्लाह सही मानों में रमज़ान का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आपने जूते उतारें, पाँव के दरमियान में रखें, दाएं भी फरिश्ता बाएं भी फरिश्ता। अल्लाह का जिक्र होता है, वो आमीन कहते हैं। जितने भी अहबाब आए हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ, इन बुजुर्गों ने अपनी मौजूदगी में अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा जुमला निकला हो, खुदा की रज़ा के लिए जनाजे की अदायगी से पहले मुआफ़ फरमाएं, और सारे संग जो है नियत समात फरमाएं। 4 तकबीर, नमाज जनाजा
फर्द कफाया सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के दुरूद वास्ते पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाजिर इस मय्यत के पीछे इमाम साहब के मुँह तरफ किबला शरीफ सारे संगी अदब के साथ अपनी नियत कर लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे अब्बा औलाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सारे संग दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि या रहमतल लिल आलमीन। मौला एक दूसरे से मुकद्दस मुकाम पर अच्छे अंदाज के साथ कुरान पाक की तिलावत हाया की बहुत अच्छे अंदाज पर किताब ये जनाजा पढ़ा। अहबाब ने अव्वल आखिर दुरूद पाक शरफ़ात अखलाकी तमीज़ ज़िक्र अज़कार किए नबी पाक अस्सलाम। मौला सारे ज़िक्र को तेरी पाक बरगाह में पेश करता है, कबूल दे मंजूर फरमा। आमीन। मोहम्मद ज़मीर साहब के कामल बख्श फरमा। आमीन। बंदियां अता फरमा। प्यारे मुस्तफ़ा की बार-बार ज़ियारत अता फरमा। आमीन। बुजुर्गों को जिस कब्रिस्तान में दफन करेंगे तमाम लोगों की कामल बख्श फरमा। जो नेक हैं दर्जात में बुलंद हैं, गुनहगारों के गुनाह को माफ़ फरमा। जितने भी अहबाब इस मकाम पर जनाज़े की अदायगी की है सब का न कबूल फरमा। आमीन। एक एक अदला करूँ खरबू ने किया अता फरमा। आमीन। रमज़ान शरीफ का सही मायने में मदद करने की तौफीक अता फरमा। इस माह मुक़द्दस में गरीबों मुस्किनों यतीमों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। नमाज इस्लामी में सही मायने में कुरान पाक सुनने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम की खैर अता फरमा। नेक खुशी में कामयाबियां अता फरमा। हम सबको अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमा। जिन जिन के वालिदैन मौजूद हैं दिल खोल कर उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अगर वो कब्रिस्तानों में आबाद है कब्रों की ज़ियारत के बाद फतह ख़वानी करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमा। इस आज़िम दुआ की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। औलाद वालों को अपनी औलाद को तबीज़ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना रहमतन बरकतन शफ़ा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती वफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर व हुसिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवल अर्हमुर राहिमीन बिरहमतिका या के टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असी अल्लाह अल्लाह कहना ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना दा दुनिया मेला
تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا تھا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے میرا او شعر پوری دنیا تے سنیا گیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے شام پیا تے لوگ گراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے کہ اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہدار پہ بلا لیا سب بہادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی ایک لا
پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا